First of all, a big welcome to Shivaji Mane sir, who has agreed to join us this beautiful Sunday morning. And we are going to have an absolutely fun session with him. I'm going to introduce him to you, but it's going to be through a story, right? So, first of all, welcome to all our regular students and all the new students who have joined us maybe for the first time. You are seeing a logo in our background, that is asymmetrical.ai. We are a digital platform that works across the India with multiple schools, parents, and students to inculcate the habit of reading, writing, learning, and the spirit of community among students, right? So that is what we do. If you are new here, welcome. So asymmetrical talks is something that we do maybe alternate Sundays, and we get some fantastic people to speak to you about multiple different topics. So, right from wildlife to jungles to stories to writing books to science to geography to trees, we have everything, right? So, Asymmetrical Talks is that wonderful place where you come and listen to some amazing thoughts by some amazing people, right? So, coming back to today, I'm sure all of you have already seen the poster, which is hands on science. So, now everybody knows, of course, that we are going to be learning about science. But the person that you are seeing on the screen, I'm sure you might have seen him in news or in on TV or in TED Talks. But there is a very important backstory here, okay, that has inspired us at Asymmetrical so much, right? So when you think of a scientist, huh, we usually think of a person who has done schooling, college, all your other degrees, right? And then he has got into his field of work, right? Can you believe a scientist who has pursued schooling only up till seventh? Yeah. Mr. Shivaji Mane, right? We have Mane sir with us who has pursued schooling only up till seventh standard. Then you should be wondering that then what has led him to be a scientist that he is today, to conduct thousands of teacher student and school interactions on science, to be a TED speaker on science, to be a renowned person in making toys from trash in science. Then what has led him to do that? His curiosity. He was working in Ayuka, which is in Pune, in a very different thing, which was housekeeping. It was nothing related to a regular science that he does today, right? But his curiosity and his timing led him to what he does today. So his work is amazing. You should definitely read up on him on National Innovation Foundation webpage also, that we will be posting with the link of this particular recording. We will be posting about him also. So please read about it. But Mane sir's journey from learning a little bit and then working in science and then leading students and teachers towards science has been incredible. Thank you, Mane sir, for actually coming here on Asymmetrical Talks and talking to our students. We are really grateful. Thank you, ma'am. Yes, so let's get started. It's going to be a fun session on science. You're going to learn so much about science. And if you have any questions, or if you want to talk about something with Mane sir, that, maybe you have done this experiment, maybe you have some questions, maybe you don't understand what is going on, or maybe you want to add to what is going on, use the chat or Q&A section that is open for everyone. And we will take your questions and your comments as soon as we can. Okay? So let's get started. Let's get started. Actually, Mane sir, welcome to Asymmetrical. Ketkitai has already given a very nice introduction about you. तुमच्याबद्दल एवढं छान आम्हाला सगळं कळलेलं आहे आणि खूप भारी वाटतंय तुम्ही आमच्या बरोबर जॉईन झालेला आहात. आम्ही म्हटल्याप्रमाणे सगळ्या मुलांना मराठी कळतच आहे. तुम्ही तुमच्या कम्फर्ट प्रमाणे हिंदी, इंग्लिश, मराठी सगळं मिक्स करू शकता. आणि आय एम शुअर की सायन्सची लँग्वेज अशी आहे की त्याला कुठलंही म्हणजे काही कुठल्या लँग्वेजची गरज नाही आहे. So be comfortable and we can start the session. Yes. Okay. आवाज येतोय? हो, व्यवस्थित आहे सर. थँक्यू. नमस्कार
इंट्रोडक्शन तर झालेलंच आहे, पण त्यात थोडंसं अजून एक तुम्हाला थोडीशी अजून माहिती देतो की आयुकामध्ये एक सायन्स सेंटर आहे जे पुलंच्या देणगीतनं उभारलेलं आहे. पु ल देशपांडे एक मराठी आयकॉन होते आणि फार असं भरभरून जनतेला दिलं. तर त्यांनी फारच छान चांगल्या पद्धतीने सगळे जे काही पब्लिकमधनं मिळवलं ते पब्लिकमध्ये डोनेट केलं. तर त्यांच्या देणगीतनं उभारलेलं सायन्स सेंटर आणि तिकडे अरविंद गुप्तांबरोबर मला 12 वर्ष या सगळ्या गोष्टीचं एक्सपेरिमेंट करण्याचा योग मिळाला आणि असे भरपूर एक्सपेरिमेंट डिझाइन केले आणि तिथे शिक्षक मुलं येत होते आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही सगळ्या अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी घेतो. तो उसमें से कुछ ही एक्टिविटी आज हम आपके लिए लेके आए। तो आज के इस वेबिनार में हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे। सिंपल सिंपल तरीके से कैसे एक्टिविटी बनाते हैं और उसके पीछे का सिद्धांत कैसे सीखते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत कुछ ज़्यादा मतलब मटेरियल नहीं चाहिए और मार्केट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारा मटेरियल आपके घर में अवेलेबल होता है और उससे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे टॉयज़ बना सकते हैं। तो सेम ऐसे ही कुछ टॉयज़ आज आपके सामने हैं। तो ये है मेरे पास एक स्ट्रॉ। तो आप सबको दिखाई दे रहा है एक स्ट्रॉ है, बेंड वाला या सिंपल वाला कोई भी एक स्ट्रॉ ले सकते हैं और इसे हम लोग अभी ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कट कर देंगे। तो ये एक शॉर्ट वाला पार्ट है और एक लेंथ में इसका ज़्यादा है। हाइट इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। तो ऐसे ही इसमें सिर्फ इनर डायमीटर सेम बट इसका लेंथ जो है वो अलग-अलग है। अभी क्या करना है हमको इस स्ट्रॉ को ऐसे फ्लैटन करना है, कोई भी एक एंड चपटा करना है और सीजर के माध्यम से कट करना है, स्लांट कट करना है। तो ये स्लांट कट करने के बाद आपको एक रीड दिखाई देगा और इसे अगर ओपन करते तो क्रोकोडाइल का जो माउथ होता है ना वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, अगर ऐसा दिखेंगे तो हम शार्प करने के बाद जो पेंसिल दिखती है वैसा दिखाई देगा। तो सेम पार्ट हमें दूसरे स्ट्रॉ के अंदर करना है और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे बोलते हैं रीड और ये जो रीड है ये रीड वायब्रेट करता है। तर हे जे रीड आहे तर हे रीड कंप पावतं आणि कंपनांमुळे आपल्याला इकडे आवाज ऐकायला येतो. कुठल्याही आवाजाच्या मुळाशी हवा आणि कंपन असतात. अगर कोई भी हम लोग साउंड बनाते हैं तो उसके पीछे एयर एंड वाइब्रेशन होते हैं। तो हमारे पास 2 स्ट्रॉज है, दोनों के अंदर जोर से ब्लो करेंगे लेकिन दोनों में से जो पिच है वो अलग-अलग होगा। सो आपको क्या लगता है कौन से स्ट्रॉ से आवाज हाई पिच होगा? छोटे वाले से या बड़े वाले से? Kids, you can give answers in chat, long one or short one. Just start writing. Sir is asking you. ओके, लॉन्ग बोल रहे हैं सर, मैक्सिमम लोग Yes. लॉन्ग बोल रहे हैं, कोई शॉर्ट बोल रहा है। लेट्स Right. सी। ओके, सो ट्राई करते हैं हम लोग। तो आपका आंसर तो हमको मिल गया। आपको पता है कि कोई भी आवाज अगर हम सुनते हैं साउंड तो हर्ट्स होते हैं। कितने हर्ट्स में वो आवाज हमको सुनाई देता है? कितने हर्ट्स जब होते हैं तब वो आवाज हमें सुनाई देता है ह्यूमन को। तो कम से कम कितने हर्ट्स होना चाहिए? एक रेंज है हमारी, फ्रीक्वेंसी है। तो वो कितना हर्ट्स से हमें सुनाई देता है? हाँ, ये तो पता चला कि स्मॉल वाले से आपको हाई पिच मिलेगा। विल बी हम अभी ट्राई करते हैं बट हमको अभी 25 to 90. Virat is saying 25 to 90. Akshata is saying 20. ओके राइट, तो 20 इज गुड। तो बराबर एकदम राइट है। 20 हर्ट्ज से हमें सुनाई देता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 ये हमारी रेंज है। ओके, ह्यूमन जो है वो हर्ट्ज कितना सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है। 20 के नीचे वाला डॉग को सुनाई देता है और 20,000 के अबाव जो होते हैं वो बैट को सुनाई देता है। सो सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। सो मेरे पास 2 स्ट्रॉज है और आपने आंसर ऑलरेडी दिया है। तो हम लोग अभी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ट्राई करना है हमें। एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के बाद ही हमको अब उसका आंसर मिलता है। तो सिंपल तरीके से देखिए, अभी दोनों स्ट्रॉ के अंदर ब्लो करते या स्ट्रॉतला आवाज बघा आणि सेम तेवढ्या जोरात आपण straw मध्ये पण करणार आहोत। तो दोनों स्ट्रॉ में ब्लो करने के बाद जो हमें आवाज मिल रहा है इसका जो आवाज है ये ज्यादा है, आवाज लो पिच, लो पिच। और ये जो शॉर्ट वाला स्ट्रॉ है इसका आवाज हाई पिच।
तो हाई पिच, लो पिच। अभी पिच जो है, ये जो स्ट्रॉ, अगर सर हम थोडंसं व्हॉल्यूम तुमचा मोठा होऊ शकतो किंवा स्क्रीनच्या जवळ येऊ शकता? ओके, हां. आता सरांनी दाखवला डिफरन्स कळला ना सगळ्यांना? लांब स्ट्रॉचा लो पिच आवाज झाला. लो पिच इज अ लिटल बेस वाला आवाज. हाय पिच इज वरचा आवाज. राईट. हं? आता आवाज येतो मॅडम? हां, परफेक्ट आहे. ओके. तर दोन स्ट्रॉचा आवाज आपण पाहिला, लो पिच आणि हाय पिच. तर घरामध्ये आई आणि बाबा आहेत. तर कोणाचा आवाज हाय पिच असतो? आईचा का बाबांचा? तुम्ही चार्टमध्ये You सांगू don't शकता. give this answer. It's a very controversial. We all know the answer, but you don't have to give. ओके. सो आता मॅडमनी तर सांगितलं की आन्सर द्यायचंच नाहीये. माहिती आहे पण द्यायचं नाही आता. ठीक आहे. तर मग आपल्याला सांगणं तर गरजेचं आहे. त्यामुळे मीच तुम्हाला सांगू इच्छितो. तर दोन जर सॉरी, आई आणि बाबांमध्ये जर आपण कंपेअर केलं किंवा शाळेमध्ये सर आणि मॅडम आहेत, या दोघांमध्ये जर कंपेअर केलं तर कोणाचा आवाज हाय पिच असतो? तर मॅडमचा आवाज हाय पिच असतो. घरामध्ये आईचा आवाज हाय पिच असतो. म्हणून बिचारे बाबांचा आवाज रूममध्येच राहतो आणि आईचा आवाज सोसायटीच्या बाहेर जातो. असा हाय पिच असतो आईचा आवाज. का? कारण गळ्यामध्ये एक ओकल कॉर्ड नावाची म्हणजे ओकल कॉर्ड असते आणि त्या ओकल कॉर्डवरती एक मेम्ब्रेन असतो, पडदा असतो. तो वो जो पर्दा है, उसमें कितना टेंशन है, वो और उसका लेंथ कितना है, उसके ऊपर हमारा आवाज निर्भर होता है। सो जेंट्स के गले में जो ओकल कॉर्ड होती है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। मतलब कितना? तो 17.5 एमएम से लेके 25 एमएम तक की होती है। और लेडीज़ के गले में जो ओकल कॉर्ड होती है, उसका लेंथ होता है 12.5 एमएम से लेके 17 एमएम तक। तो इसलिए शॉर्ट ओकल कॉर्ड हाई पिच और लॉन्गर ओकल कॉर्ड लो पिच। तो इस तरीके से नेचर में भी हमको देखने को मिलता है। अगर आपने क्रेन लिया और स्पैरो, दोनों में अगर कंपेयर किया ये दो पंछी, तो वो स्पैरो का जो आवाज है वो बहुत हाई पिच होता है और उसकी जो गर्दन होती है एकदम बॉडी को अटैच होती है। और अगर आप क्रेन लेते हैं, क्रेन की गर्दन काफी लंबी होती है बट उसका आवाज लो पिच होता है, सेम दिस स्ट्रॉ की जैसे। तो इस तरीके का हमें बहुत ही अच्छा एक साउंड एक्सपेरिमेंट मिला और हमने देखा कि हाई पिच लो पिच भी देखा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये लॉन्गर स्ट्रॉ लेंगे और ब्लो करते टाइम धीरे-धीरे इसकी लेंथ है ना, कम करते जाएँगे। जब मैं इसके अंदर ब्लो कर रहा हूँ और मैं इसकी लेंथ कम कर रहा हूँ, तो धीरे-धीरे पिच जो है, वो चेंज होते जा रहा है। और क्या हो जाएगा पता है? लो टू हाई पिच, मतलब धीरे-धीरे आवाज़ आपका बढ़ रहा है और लो टू हाई पिच हमें सुनाई दे रहा है। कुछ नहीं करना है, जस्ट ब्लो करते रहना है और कट करना है। बट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको ना मिरर के सामने या आपके टीचर या मम्मी-पापा के सामने करना है। किसी एडल्ट के सामने करना है ये एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 बार। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, देन यू कैन यूज़। तो क्या था, नहीं तो हम काटते हैं ऐसे, प्रैक्टिस नहीं है और ऊँचा और ऊँचा और ऊँचा करते-करते अगर इसे कट कर देंगे ना, नोज़ को, तो 8वाँ सुर मिलेगा। इसलिए आपको ये केयरफुली करना है किसी के सामने, ओके? 8वां सूर is when you started crying when you तो were a लेकिन baby. बहुत इंटरेस्टिंग आवाज़। हाँ, हाँ, राइट। सो ये वाला एक छोटा-सा आपको एक्सपेरिमेंट है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक आवाज़ मिल रहा है और जब हम ब्लो कर रहे हैं, बीच में से चेंज। तो जैसे-जैसे स्ट्रॉ की लेंथ कम करते जाएँगे, वैसे-वैसे पिच बढ़ता जाएगा और लो टू हाई पिच मिलेगा या सा रे गा मा पा धा नी सा जो सुर सर होते हैं। प्लीज ॲडजस्ट व्हॉल्यूम ॲडजस्ट करता? आवाज नाही आला? आता येतोय. ओके, ओके. त्याच्या वेळेस ना काहीतरी बघूया परत. तो ऐसे अलग-अलग आवाज आता है और
अभी हमारे पास एक छोटा स्ट्रॉ है, तो इससे हम लोग ना बहुत अच्छी मिमिक्री कर सकते हैं, मिमिक्री। तो अभी छोटा बेबी है 2 मंथ का, और उसके रोने की आवाज निकालना, बेबी क्राइंग। तो छोटा स्ट्रॉ लेना है, सेम ऐसे कट किया हुआ, तो थंब के बाजू में रखना है, दूसरे हाथ का फ्लैप बनाना है, जब ब्लो कर रहे तभी से बंद चालू करना है। तो बहुत ही अच्छा एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज निकाल सकते हैं हम। तो देखते हैं मिमिक्री। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज निकाल, तो सिंपल एकदम। एक स्ट्रॉ लेके स्ट्रॉ से कितना अच्छा हम लोग साउंड ये सब्जेक्ट लर्न कर This is सकते। fun. I'm ओके। going to try this today. आय नो, सेम हिअर. ओके, इसी के साथ मेरे पास और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय है। और ये देखिए, ये ग्लास है। तो ये स्पेशल ग्लास है, तो इसे बोलते हैं वाइन ग्लास। और ये वाइन ग्लास क्यों चाहिए हमको? बिकॉज ये ऊपर वाला कर्वेचर अलग है, स्टैंड अलग है, इसलिए हमें ऐसे होल्डिंग पार्ट वाला एक ऐसा ग्लास चाहिए। तो इस ग्लास में ऊपर वाला रिम जो है इसे क्लीन करते हैं, और इसके ऊपर वाले रिम में थोड़ा सा पानी ऐसे लगा के अपना फिंगर जो है 2-3 बार क्लीन करना है। उसके ऊपर कुछ लाइंस होते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से ऐसे रब करना है इसके ऊपर। और अभी फिंगर को डीप किया है पानी के अंदर, और इस रिम के ऊपर ऐसे अगर हम लोग धीरे से ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, तो बहुत ही अच्छा साउंड मिलेगा आपको। सर थोडा खाली घ्या ग्लास, म्हणजे माईकच्या जवळ आला तर मस्त ऐकायला येईल आणखीन. वाव. तो बहुत ही बढ़िया ये आवाज आता है इसमें। और जैसे हम लोग जल तरंग नाम सुना होगा आपने, तो जल तरंग में जैसे बाउल्स होते हैं और फोर्क से उसके ऊपर मारते हैं, तो ओके, आवाज नहीं आ रहा ऐसे, ऐसा नाउ येते का मॅडम आवाज? म्यूट येतंय सर. म्यूट येते? नाही येतंय सर आवाज. येते? नाही, नाही येतंय. हम्म, इकडनं तर माईक चालू आहे. ओके, बट ये जो है पता नहीं आवाज का कुछ इशू होगा, क्योंकि ये इतना पिच हाई है, तो वो शायद कैच नहीं कर पा रहा है। तो येस. ये ऐसा ग्लास है, और इसके ऊपर वाला जो रिम है, इसके ऊपर सिर्फ फिंगर गीला करके आपको इसके ऊपर ऐसे रब करना है। जैसे आप इसके ऊपर रब करते हो, तो देन उस टाइम बहुत ही अच्छा एक ग्लास जो है ये एकदम बढ़िया म्यूजिक करने लगता है, और यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, और उसकी वजह से साउंड मिलता है। तो ये साउंड का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। तो ऐसे ही 1-2 एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि साउंड कैसे अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं, और इजीली हम लोग देख सकते हैं। तो That's also an interesting experiment की Zoom मध्ये is it not capturing a very high pitched slight noise? That is also a possibility. Very interesting. But kids, if you have a glass that looks like this at home, do try it. Just wet your finger a little bit, थोडंसं पाणी, आणि ग्लास क्लीन केल्यानंतर त्याच्या रिमवर एकदा बोट फिरवून बघा, असं आता जसं सर करत होते. And see if there is a particular noise that you can hear, a high pitched noise. आणि इट्स अ रिक्वेस्ट की सगळे एक्सपेरिमेंट्स आपण पहिल्यांदा करत आहोत, सो कोणाच्या तरी गाईडन्स खाली हे एक्सपेरिमेंट्स करा. येस, अजून एक आपल्याकडे आवाजाचा एक्सपेरिमेंट आहे, ज्याच्यामध्ये हा बर्ड आहे, ह्याला स्पॅरो म्हणूया आपण,
आणि या स्पॅरोमध्ये 3 होल्स आहेत. 1, 2, 3. कुठलंही होल न बंद करता ह्याला पाण्यामध्ये डीप करायचंय आणि खालच्या टँक इतकं पाणी घ्यायचंय. आता ह्याच्या आतमध्ये पाणी नाही. साधा साऊंड येतो. पण ह्याला जर पाण्यात डीप केलं आपण आणि खालच्या टँक इतकं पाणी घेतलं, एक्स्ट्रा जे काही पाणी आहे आपण ते काढून घेऊया. आणि आता जोरात फुंक मारूया. तर फार छान याच्यामध्ये आवाज येणार. तर आवाज आला का? हो. ओके. आता अपन येस. फूंक मारत असताना एंगल जर चेंज केला, अगर हम इस पे फूंक मार रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर इसका एंगल चेंज कर देते हैं, तो देखना पिच भी चेंज हो जाता है. बस पानी नहीं पीने का क्योंकि ये प्लास्टिक है. तो देखिए ब्लो करते टाइम जस्ट एंगल चेंज करना है. सर थोडं जवळ येता. इस तरीके का बहुत साउंड आता है. ठीक. आवाज येतो. बारीक येतो सर. थोडं ते इट इज बिकॉज ऑफ द झूम का सेटिंग्स. इट इज हा. नथिंग टू डू विथ युअर माइक. ये नाहीतर ह्याचा आवाज असा फार हाय पिच आहे एकदम. असं 2-4 आजूबाजूच्या सोसायटीला आवाज येईल एवढा आवाज. अरे बापरे. हो. तो साउंड के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे कि जिसके कारण हमें अलग अलग आवाज मिले. ओके. तो उसी के साथ हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. सर साउंड में आपने कहा कि एयर एंड वाइब्रेशन राइट. are two things that create sound, राइट. right? So right Basically- now, basically, whenever we were experimenting, we played with air and vibrations and their different settings, correct? राइट. Very interesting, yeah. यस. सो ये बेसिक है एयर एंड वाइब्रेशन. तो उसके बिना आवाज बनता ही नहीं है. तो ये उसके आगे का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ी स्प्रिंग है. स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पर आगे थ्रेड लगाया है, जो कि हम थ्रेड को रोटेट करने वाले. थ्रेड जस्ट रोटेट करने के लिए, क्योंकि Okay. ये पूरा स्प्रिंग हमको रोटेट करना है. नाउ अभी मैं ये बॉल निकालता हूँ और इस स्प्रिंग को थोड़ा सा हम लोग रोटेट करते हैं. तो देखिए स्प्रिंग ऐसे रोटेट होने के बाद ऐसे आपको लग रहा है कि स्प्रिंग ये बड़ा 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 हो रहा है, ऐसे लग रहा है. हाँ. Right, right. तो थोड़ा मैं ये ब्लैक बैकग्राउंड इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इजीली रोटेट हो रहा है. ओके. सो जब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ऐसे लग रहा है कि वो धीरे 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 नीचे नीचे जा रहा है. ये इल्यूजन है बेसिकली. ऐसे लगता है ये वो अभी ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ऐसे आपको लग रहा है. ये इल्यूजन और अच्छा दिखाने के लिए हमारे पास ये बॉल है. इस बॉल को इस रिंग में ऐसे रख देते हैं एंड देन रोटेट करते हैं. तो उस टाइम पे हमको क्या लगेगा, ये जो बॉल है, ये बॉल नीचे जा रहा है, ऐसे लगेगा. अभी बॉल अंदर रख दिया और इसको रोटेट करते हैं अभी. ओ वाव. Lovely. देखो ऐसे लग Kids, रहा है you की can give बॉल your reactions in the chat box. Come on. असं वाटतं ना आपल्याला की हा बॉल हळूहळू तो वर चाललेला आहे. वर जातोय 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 किंवा खाली येतोय. आपण कॅच करूया. कॅच 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 कॅच. अरे बॉल तर खाली येतच नाहीये. वाव. पण आपल्याला तर असं वाटतं की बॉल खाली जातोय, है ना. सो याला म्हणतात ऑप्टिकल इल्युजन, दृष्टिभ्रम. हा भ्रम आहे आपला, की आपल्याला How interesting. असं वाटतंय की हा बॉल खाली चाललेला आहे, पण हा बॉल खाली जात नाहीये आणि वर पण येत नाही. बॉल एका जागेवरच आहे My God. और हमको ऐसे लग रहा है कि ये बॉल नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है. तो बहुत ही बढ़िया ये ऑप्टिकल इल्यूजन है. एट अ टाइम ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, बॉल एंड स्प्रिंग दोनों एक साथ रोटेट हो रहा है. और सेकंदाच्या 10व्या भागाला जर कुठली प्रतिमा बदलली तर आपल्याला दोन्ही एकत्र दिसतं. कारण आपल्या डोळ्याची पण एक मर्यादा आहे. त्या दृष्टिपटलावरती दोन्ही इमेज ॲट अ टाइम जर आले तर आपण ते सगळे मिक्स करतो आणि त्यांना एकत्र पाहतो. त्यामुळे आपल्याला असं भास होतो So की तो what sir explaining here is about illusion. The 10th part of a second, 1 second का 10th part, जब अब उसका और अपने आंख का ये मैच होता है, तभी ये ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं.
It's a very simple and interesting fact he has stated, boys. तो इसलिए एनिमेशन जो मूवी है या उसमें जो भी ड्राइंग्स होते हैं, सो नंबर ऑफ आपको पिक्चर 1 सेकंड के अंदर दिखाना होता है। देन वो हम लोग वो टॉम या जेरी आगे भाग रहा है या मोटू पतलू आगे जा रहा है, वो देखते हैं तो वो जस्ट पिक्चर्स जो है ना नंबर ऑफ 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे होते हैं हमारे आंखों के सामने आते हैं, तो इसलिए हमें वहां पर वो मूविंग लगते हैं, भाग रहे हैं सभी। तो सेम प्रोसेस, और बहुत ही अच्छा एक इल्यूजन टॉय है। तो ये कैसे बनाया? ये एक जस्ट वायर है, कोई भी वायर आपके पास होगा, तार, तो वो तार किसी भी पाइप या ऐसे कुछ आपके पास जो भी राउंड वाला गोल है उसके ऊपर रैप करना है, तो एक स्प्रिंग बन जाएगा। स्प्रिंग को अगर बाहर निकालेंगे, थोड़ा लाइटली खींचा, तो ऐसे आपको इस तरीके का स्पाइरल मिलेगा। फिर आप वह ऊपर एक लूप बना के उसमें थ्रेड लगा सकते हो ताकि आपको इजीली ये रोटेट करने आ सके। और उसके अंदर आपको इसका जितना भी एरिया है उसके अंदर आपको ये बॉल वगैरह लगा के एकदम अच्छे से बना दो। मस्त, खूप मस्त सर. थँक यू. तसंच हे आपलं एक अजून एक इंटरेस्टिंग टॉय आहे. हे 2009 मध्ये बनवलं. आणि तुम्ही हे बघितल्यानंतर तुम्ही पण ह्याच्यासाठी पण लिहू शकता की तुम्हाला काय वाटलं. का मी विचारतोय? कारण क्यों मैं पूछ रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने 2009 में हमने ये टॉय बनाया है। अब 2009 में हम लोगों ने ये टॉय बनाया, और तब से हम लोग जब भी इस टॉय को दिखाते हैं, तब हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है। शायद वो आपसे भी मिले सुनने को, या आप लोग वहाँ मैसेज भी कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉय है। तो ये जीआई वायर है और गैल्वेनाइजिंग आयरन वायर बोलते हैं। रस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हार्डवेयर की शॉप में मिलता है। और सेम ऐसे ही पेन के ऊपर रैप किया, स्प्रिंग बन गया, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा तो ऐसे स्पाइरल मिल गया। नीचे एक ऐसा बीड लगा दिया स्टॉपर के तौर पे, और उसके अंदर कलर स्ट्रॉ के पीसेस डाले, ऐसे देखिए बहुत सारे कलर स्ट्रॉ के पीसेस डाले, और ये जो दिख रहा है आपको ये स्टॉपर है, ठीक है। और ये अलग अलग कलर के थे, हमने 3 कलर के स्ट्रॉज डाले छोटे छोटे, और फिर सेम वैसे ऊपर एक बीड लगा दिया ताकि ये जो है स्टॉपर है। तो 2 स्टॉपर लगा दिया, और उसके बीच में ये कलर स्ट्रॉ के पीसेस है, और ये स्पाइरल वायर है। जैसे ही मैं इसे उल्टा कर देता हूँ, तो ये बहुत ही बढ़िया एक मोशन मिलता है आपको, बहुत ही अच्छा एक स्पाइरल मोशन मिलता है। और जब भी ये देखते हैं टीचर या बच्चे, तो एक वर्ड उनके मुंह से निकलता है, तो वो शायद आपसे भी मिले हमें। तो आपको अगर लगता है कुछ, तो ये आप लोग वहां पर मैसेज कर सकते हो। 1, 2 and 3. हां. Oh, it looks like a snake. That's going so fast. येस. बघितल्या तुम्हाला काय वाटलं याच्याबद्दल? हा, वाव, स्नेक. राइट, एकदम परफेक्ट वर्ड है। जब जब हमने इसको दिखाया, तभी तभी हर एक टीचर, 2009 से हम लोग दिखाते हैं ये, तब से हर कोई इसके बोलता है वाव। तो ये हमारा वाव टॉय है। वॉव! और आपको पता है क्या, ये वाला जो टॉय है अभी पूना बॉम्बे में रिटर्न गिफ्ट की तौर पे इस्तेमाल होने लगा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये एकदम अगर आप देखेंगे हार्डली कि 2 या 3 रुपए इसका खर्चा आता है, और उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टॉय बन जाता है, और बच्चे खुद ही अपने बर्थडे के लिए ऐसे गिफ्ट बनाते हैं और बच्चों को देते हैं, फ्रेंड को देते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है। और इसके अंदर ऐसे आपके पास अगर कलर स्ट्रॉ नहीं मार्केट में मिल रहा है, सो यू कैन यूज ऐसे बीड्स आल्सो, कलर्स ऐसे बीड्स मिलते हैं बहुत सारे, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी आपके पास मटेरियल है वो उसका हम इस्तेमाल करके ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय बना सकते हैं। यस, थैंक यू। आपके मैसेज वाव पे वाव आ गया, इसलिए धन्यवाद। हाँ, गुप्ताजींचं सगळ्यात पहिलं आणि लाडकं खेळणं आहे अरविंद गुप्ता सरांचं. तर हे हे वॉल ट्यूब, सायकलची वॉल ट्यूब असते आणि काडेपेटीतल्या काड्या, हे घेऊन त्याच्या मदतीने सरांनी फार चांगलं हे मेकॅनो बनवलं. तो सबसे पहले सर ने ये खिलौना बनाया, तो ये मैस्टिक मॉडल देखिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा जानबूझ के थोड़ी बड़ी स्टिक इस्तेमाल की है, ये टूथपिक है, लेकिन आप माचिस की तीली भी इस्तेमाल कर सकते हो, टूथपिक इस्तेमाल करते हो, कुछ भी आपके पास जो इवन मटेरियल है वो इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 साइड है हेक्सागन। हेक्सागन को अगर ऐसे बीच में हम लोग प्रेस करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन गया। सी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को अगर हम लोगों ने ऐसे
दोनों तरफ से बीच में ऐसे दबाया तो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों हम्म साइड इक्वल है, ठीक है। हम्म अगर हमने इसे ट्विस्ट किया ऐसे तो ये ऐसे इन्फिनिटी का लोगो लग रहा है या बो राइट लग रहा है, बो जैसे दिख रहा है आपको। राइट हाँ? अगर एक के ऊपर एक रखा ऐसे, इसी को ट्विस्ट करके एक के ऊपर एक रखा तो वो जो हमारा रेक्टेंगल था वो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ऐसे सिमेट्री बन गया, मतलब दो ट्राइंगल एक के ऊपर एक आ गया, तो सिमेट्री भी बन गई। छोड़ने के बाद ये हेक्सागन है, लेकिन ये लचीला है, देखिए ये ओवल हो रहा है, ऐसा डांस कर रहा है, ठीक है। इसको साइड में रख देते हैं, फिर उसमें से एक स्टिक कम कर देते हैं, तो क्या मिल रहा है हमको, ये पेंटागन दिख रहा है आपको, पेंटागन। तो इस पेंटागन को थोड़ा सा ऐसा ऊपर से अगर बीच में प्रेस करते हैं तो ये हमारा क्या मिल रहा है, इसका नाम बता सकते हैं कोई, मैसेज कर सकते हो आप, या आकाराला काय म्हणतात? हा बोटासारखा आकार दिसतो, बोट, याला anyone knows what is this shape called? ओके, याला ट्रेपिजियम म्हणतात, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है इसे ट्रेपिजियम बोलते हैं। तो ये बोट की जैसे दिखता है, नाव की जैसे, ट्रेपिजियम। ट्रेपिजियम को छोड़ने के बाद थोड़ा अंदर ऐसे दबाएंगे तो संबलंब चौकोन, बरोबर, राइट राइट राइट, यस। सो अगर ऐसा करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला हाउस की जैसे दिख रहा है, और ज्यादा पुश करेंगे तो ये ऐसा ट्राइंगल लग रहा है। लेकिन इसे कौन सा ट्राइंगल बोल सकते हैं? या त्रिकोणाला कुठला त्रिकोण म्हणतात? स्पेशल नाव आहे या त्रिकोणाचं, कारण हा असा वर्टिकल आहे, कारण याच्या दोन बाजू सारख्या आहेत। आप बता सकते माहितीये का हो? कोणाला? हा, तुम्ही सांगू शकताय की या त्रिकोणाला कुठला त्रिकोण म्हणतात? समभुज त्रिकोण नाही, समभुज म्हणजे तिन्ही बाजू सारख्या असलेल्या ना। नाही, समद्विभुज समद्विभुज. लिहिलंय हा आय थिंक. हा बरोबर, समद्विभुज, राइट राइट राइट, समद्विभुज, राइट। आयसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट राइट राइट। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है, तो ये दो इसके जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं, या तो ये वाला अगर हमने ऐसे ट्विस्ट किया तो आपका और हमारा पसंदीदा एक बहुत ही बढ़िया स्टार बन जाता है। उस पेंटागन को हमने थोड़ा सा क्या किया, ऐसे पकड़ा, ट्विस्ट किया और नीचे की तरफ ऐसे रख दिया, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे स्टार बन जाता है। तो बस छोड़ने के बाद ये पेंटागन है। तो पेंटागन के कितने अलग अलग चीजें मिल गई। तो ये पेंटागन, उसमें से एक स्टिक कम कर देते पेंटागन में से, तो क्या मिलेगा हमको? स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर को अगर बीच में ऐसे दबाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? ये इसे बोलते हैं रोम्बस, राइट। ये रोम्बस मिल गया। या ऐसे डायमंड होता है, काइट होता है, और ऐसे एक बहुत अच्छी बर्फी भी होती है, उसका नाम है काजू कतली। बाप रे बाप, बहुत महंगे, 1000 रुपीज केजी। आह, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे हमें शेप मिल जाता है। लेकिन ये भी लचीला है, देखिए ये भी वॉबल कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग उसमें से एक स्टिक कम कर देते हैं और हमें मिलता है ट्राइंगल। तो नेचर में सबसे स्ट्रांग 2D में सबसे स्ट्रांग ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी टच से मस नाही हो रही, कहीं पर भी आप दबाव, कुठेही याला जर आपण असं दाबलं तर ह्याची ह्याची जी जागा आहे किंवा ह्याची शेप आहे, याचा आकार जो आहे तो बदलत नाही। हा जगातला 2D मधला सगळ्यात स्ट्रॉन्ग आकार आहे, 2D मधला, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, इसकी प्रॉपर्टी टच से मस नहीं हो रही है। और ये इक्वलैटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड इसकी इक्वल है, 60 60 60 ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो तीनों कोण की जो उसकी अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा पूरा, 180 डिग्री। तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे आपका ये ट्रायंगल में। तो ये 2D में है, 3D में कौन सा आपको पता है कि जो बहुत ही स्ट्रांग है शेप, बता सकते हो? हे 2D मधला त्रिकोण आहे स्ट्रॉंग, तर मग आपला 3D मध्ये कुठला आकार असा स्ट्रॉंग आहे, मजबूत? पिरामिड, कोण, नाही, नहीं, कोण, पिरामिड, क्यूबॉइड, नहीं, क्यूब भी नहीं, सर्कल नहीं,
नहीं, कुछ और? उसका नाम टेट्रा से ही है। ट्रायंगल, ट्रायंगल 2D में है ना। सिलेंडर, नहीं। ओके, तो इसका जो ओके, मैं बताता हूँ आपको। उसको बोलते, नहीं, टेट्राहेड्रॉन। ओके, सो ट्रायंगल में मतलब 2D में ट्रायंगल है, और 3D में टेट्राहेड्रॉन जो है वो सबसे स्ट्रांग है। तो थैंक यू योर मैसेज। तो आप लोगों ने देखा कि ये 2D का था और 3D में टेट्राहेड्रॉन। और ये जो एक बनाया है, ये आइकोसाहेड्रॉन है, मतलब 20 ट्रायंगल से बना हुआ ये आइकोसाहेड्रॉन है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। मीन्स मराठीमध्ये टेट्राहेड्रॉनला त्याच्या 4 बाजू सारख्या असलेल्या, त्याचं मी मराठी नाव सांगतो तुम्हाला नंतर, लक्षात नाही माझ्या पण. ठीक आहे, टेट्राहेड्रॉनचं. आणि हे आयकोसाहेड्रॉन आहे, म्हणजे 20 त्रिकोणापासून बनलेला हा एक बक्की बॉल सारखा दिसणारा आकार आहे. Thank you. तर हे काडीपेटीची काडी आणि सायकलची वॉलट्यूब घेऊन अरविंद गुप्ताने सगळ्यात पहिलं खेळणं बनवलं आणि ते फार पॉप्युलर झालं. तर त्यातलं हे, तर कोणी आपल्या गावातली अगदी गरीबातली गरीब शाळा ही खेळणं बनवू शकतात. ह्याच्यासाठी काही नाही, सायकलची ट्यूब पाहिजे आणि काडीपेटीची काडी. तर त्याचे छोटे छोटे तुकडे आहेत. हे बघा, वॉलट्यूबचे जर बघितला तुम्ही, इथे आपण काढून बघूया. एक छोटासा असा तुकडा आहे, एक साधारणतः एक अर्धा इंचाचा तुकडा इकडे लावलेला आहे. बस त्याच्यामध्ये आपल्याला असे दुसरे दोन दोन काडेपेटीच्या काड्या आतमध्ये घुसवायच्या आहेत आणि हेडला हेड टच करायच्या आतमध्ये, त्या रबरच्या आतमध्ये. तेव्हा तुमचे फार चांगले आकार तयार होतात. एक अवॉर्ड विनिंग टॉय दाखवतो मी तुम्हाला. इतका ह्या टॉयला 50,000चा पुरस्कार मिळालेला. गुप्ता सर जेव्हा या व्यक्तींना भेटले, त्यांचं नाव आहे दिलीप भट आणि प्रज्ञा भट. त्यांचा जो मुलगा आहे अंध आहे, त्या मुलाला दिसत नाहीये, तर त्या मुलासाठी त्या आईबाबांनी बनवलेली ही पाटी आणि पेन हे गरजेतनं निर्माण झालेलं टॉय आहे. आणि गुप्ताजींना जेव्हा ही पाटी आणि हे सगळं त्यांच्याकडनं पाहिलं, तेव्हा गुप्ताजींना फार आवडली आणि गुप्ताजींनी त्यांच्या नावाने पुढे ही पाटी आपल्या वेबसाईट वरती वगैरे ठेवली. तर ह्याचं नाव आहे टचिंग स्लेट. तर या पाटीचं नाव आहे टचिंग स्लेट. तर कशी बनवायची, तर आपल्या वेबसाईट वरती arvindgupta.toys.com वरती याची माहिती दिलेली आहे. टचिंग स्लेट नावाने जर सर्च केलं तर हे वेल्क्रो आहे, चप्पलला किंवा बॅगला असतं. त्या वेल्क्रोच्या स्ट्रिप्स तुम्ही कुठल्याही कॉरिगेटेड सीट वरती चिटकवू शकता. कोई भी गत्ते के ऊपर या आपके पास जो भी एक कोई ऐसा पार्ट है उसके ऊपर आप ऐसा चिपका दीजिए, तो आपका ये स्लेट बन जाएगा. ये बाकी डेकोरेशन वगैरह बाद की बात है. तो ये आपको जस्ट ये ब्लैक जो दिख रहा है ये वेल्क्रो है, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ हुक्स होते हैं. वो हुक्स वाला पार्ट यहाँ पर आपको चिपकाना. देन उसके बाद पेन कैसे बनाना है, ये एक डब्बी है जो इधर हमारे यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किचन में हींग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका हींग का डब्बी है. और ये वाला जो है ये पेन है. और एक क्रैंक जो है, ये क्रैंक हमने साइकिल स्पोक से बनाया है. साइकिल का जो स्पोक होता है, कोई भी तार ले लो, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए मटेरियल. और ये इंक की तौर पर जो इस्तेमाल किया है उसे बोलते हैं वूल, लोकर. तो वूल क्यों इस्तेमाल करना है, बिकॉज वूल के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फाइबर्स होते हैं, और वो जो फाइबर्स है ना, ये हुक के ऊपर चिपकते हैं, इसलिए आपको वूल इस्तेमाल करना है. अभी कोई भी ड्राइंग आप इसके ऊपर कर सकते हो और आपको बहुत ही बढ़िया एक इमेज यहाँ पर दिखाई देगा. दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं ऐसे. वाव! ओके, तो ये इस तरीके का आप कोई भी ड्राइंग निकाल सकते हो. अगर इंक नहीं चाहिए तो इंक फिर से आप निकाल सकते हो और फिर से इंक आपने पेन में भेज सकते हो. तो ये इंटरेस्टिंग ऐसे पेन और ये स्लेट है, इसलिए इसे 50,000 का पुरस्कार मिला. व्हॉट अ इंजिनियस सोल्युशन है. म्हणजे टेक्नॉलॉजी आणि हे एक झालं, पण या सोप्या सोप्या गोष्टींमधनं हे काय सोल्युशन आहे, कमाल.
ओके मस्त. ओके त्यांना दिसलं नाही होते. सगळ्यांना कळलंय नाही काय आहे. दिस इज इन्सेनली सिम्पल सर. वाव. अगदी It's wool actually. So amazing. आणि इंक नको असेल तर इंक काढायचं आणि परत या पेन मध्ये पाठवायचं आणि काही ड्रॉइंग करू शकतो आपण वेगळ्या प्रकारचे इथे नंबर ऑफ ड्रॉइंग बनवू शकतो. तो एक त्यातल्या त्यात एक ड्रॉइंग अजून एक फुल बघूया आपण इकडे काढून. केतकीताई, this is a perfect example of, necessary is the mother of innovation. Absolutely. तो Kids, शायद I'm सब लोगों sure. को दिखाई दिया होगा, अभी सब लोगों ने देखा है. तो इस तरीके का बहुत ही बढ़िया एक ये अपना स्लेट बन गया और इसके ऊपर आप अभी फील कर सकते हो. अगर मैंने ऐसे यहाँ अगर फिंगर रखता है तो हमें यहाँ पर बहुत रफ दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये मेरे फिंगर को जो भी स्मूथनेस पता चल रहा है और उससे मैं पता कर सकता हूँ कि मैंने कौन सा ड्राइंग निकाला है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक टचिंग स्लेट है जो कि हम लोग टच करके फील कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि कौन सा ड्राइंग यहाँ पर बनाया हुआ है. तो जो बच्चों को दिखाई नहीं देता है, जो नेत्रहीन बच्चे, ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके लिए बनाई गई स्लेट एंड पेन है और बहुत ही इसका इस्तेमाल होता है. थाईलैंड में एक लड़के ने इसका ऐसे बनाया और वो किसी कंपनी से उसे स्पॉन्सरशिप मिली और वो जितने भी थाईलैंड में स्कूल है वो अलग अलग स्कूलों को उसने डोनेट किया. तो ऐसे कुछ अलग अलग लोग इसे लेके जाते हैं. तो ये अगर आप किसी को बनाना है तो आप ये अरविंद गुप्ता वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं और जो जिन्होंने पार्टी बनाई उनकी अभी फोटो उस वेबसाइट पर है, वो भी आप देख सकते हो. यस, थैंक यू. Awesome. और इसे ना 50,000 का पुरस्कार मिला है. एनसीईआरटी जो हमारे लिए सिलेबस बनाती है उन्होंने इसे पुरस्कार दिया. तो ये अवार्ड विनिंग और बहुत ही बेहतरीन टॉय. मस्त. फारच छान आहे सर. आणि व्हेरी इंजिनियर सोल्युशन की काहीतरी खूप वेगळ्या वेगळ्या टेक्नॉलॉजीज न वापरता जे आपल्याकडे आहे सामान त्याच्यापासून हे बनवलं गेलंय. अगदी. वंडरफुल. आणि आता आपण म्हणतो ना मोबाईलमध्ये मुलं एकदा बसले की अर्धा अर्धा तास, 1 तास त्यांना कळतही नाही की रील्सवर रील्स बघत असतात. त्यापेक्षा जर अशी पाटी आणि पेन ठेवली ना, तर यामध्ये खराब होणारा एकच वस्तू आहे वूल आणि ते मला वाटतं की एक मोठा रोल आहे ना एवढा, तर तो ₹10 वगैरे आपल्याकडे आता सध्या मिळतो आणि त्याच्यामध्ये 100 पेना होतात एका ₹10च्या रोलमध्ये आणि इतका भारी आहे. काहीच म्हणजे खराब झालं तर वूलच होईल म्हणजे वापरून, वापरून, वापरून. आणि त्याच्यावरती इतक्या वेगळ्या प्रकारच्या ड्रॉइंग काढू शकतो आपण आणि एकदा का मुलांना ते आवडलं ना, मुलं तासनतास त्याच्यासोबत खेळत बसतात आणि फार छान उदाहरण आहे. चला नेक्स्ट टॉयकडे वळूया आपण. तर हे एक माझ्याकडे काही मॅग्नेट्स आहेत. तर हे अपने मैग्नेट्स, तो हम लोगों ने इसे मैग्नेट लिया है. तो मैग्नेट जो है 3 चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, निकेल, कोबाल्ट, आयरन. तो आपको पता ही है. तो इसमें से ये जो है ये सीज़र जो है एकदम ये आयरन के इसलिए इसे एकदम आसानी से अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये प्लास्टिक है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ को अट्रैक्ट नहीं करता है. स्ट्रॉ के अंदर हमने मैग्नेट रखे, 2 मैग्नेट रखते हैं और पूरा बंच जो है उल्टा करके फिर से इस स्ट्रॉ में उल्टा डालते हैं फिर से. तो देखिए ये यहाँ पर वो रिपेल कर रहा है. मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, चिपक नहीं रहा है. फिर से हम लोग 2 मैग्नेट यहाँ पर रखते हैं और इसे उल्टा करके फिर से अंदर डालते हैं. अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्प्रिंग बन रही है लेकिन मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. तो इसका वजह आपको तो पता ही है कि मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, लेकिन कौन से 2 पोल्स पास में आने के बाद ऐसे रिपल्शन कर रहा है या रिपेल कर रहा है. असं कुठले 2 पोल्स एकत्र आल्यामुळे मॅग्नेट एकमेकांना रिपेल करतात, प्रतिकर्षण करत आहेत. सांगू शकता तुम्ही? मेसेज बॉक्समध्ये तुम्ही लिहून पाठवा. सेम पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ, ओके, साउथ साउथ, गुड, राइट. सो सेम पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ जब पास में आते तब यहाँ पर क्या होता है, रिपेल होता है. सो ये रिपल्शन है. और अट्रैक्ट कब होता है, अगर हमने उल्टा करके डाला तो ये अट्रैक्ट होगा. अट्रैक्ट कब होता है, नॉर्थ एंड साउथ, राइट. तो जब अट्रैक्ट होता है
तो देखिए नॉर्थ एंड साउथ अपोजिट पोल्स जब आते हैं तो तब हमें अट्रैक्शन मिलता है, राइट। या थैंक यू, आपके मैसेज देखा हमने। अभी हम अगर देखते हैं कि उसी सिद्धांत के ऊपर हमने एक टॉय बनाया। जर्मनी, जापान, चाइना में ट्रेन चालू है, मैग्लेव ट्रेन। तो सेम प्रिंसिपल के ऊपर हमने एक टॉय बनाया है, इसका नाम है मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे बेस है, येलो एक ऐसे फोम रबर का बेस लिया हमने। सर और सर एक रिक्वेस्ट करू का? बॅकग्राऊंड तुम्ही रिमूव्ह करू शकता तुमच्या ह्याच्यात जाऊन? ओके, म्हणजे जर हे लांबनं काही दाखवायचं असेल तर ते क्लिअरली दिसू शकेल. हा, हो दिसतंय सर, ओके, दिसतंय ये. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अभी देखिए कि कितना बढ़िया एक हमारे पास ये छोटा सा एक मैग्नेटिक लेविटेशन है। एक ही मिनट आप प्लीज। तो ये जो मैग्नेटिक लेविटेशन है ये 6 स्टैंडर्ड के सिलेबस में है, और अभी जर्मनी, जापान, चाइना में इसी सिद्धांत के ऊपर एक मैग्लेव ट्रेन भी चालू है। तो आयुका में जब ये अरविंद गुप्ता जी ने ये टॉय बनाया तब वहाँ एक लड़की, मतलब उसके पिताजी वहाँ पर साइंटिस्ट है और उसका नाम है हमसा पद्मनाभन। वो 10th क्लास में थी और तब उसने इस टॉय के ऊपर रिसर्च किया, ये टॉय कैसे चलता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और ऐसा इसके ऊपर 12 रिसर्च पेपर लिखे। इंटेल ने स्पॉन्सर किया था, उसमें से थर्ड प्राइज उस लड़की को मिला। प्राइज क्या था? 5 लाख रुपए। इस टॉय को 5 लाख का प्राइज मिला, और फिर नासा ने इस लड़की के नाम से एक छोटा सा माइनर प्लैनेट रखा। तो देखिए इतना इंटरेस्टिंग टॉय है। ये टॉय के ऊपर रिसर्च करने के बाद उसे 5 लाख रुपए भी मिले, और ऊपर से उसका नाम एक छोटा से माइनर प्लैनेट हो गया। और ऐसे बहुत सारे लघु ग्रह हैं जिनको नाम देना बाकी है, लेकिन उनको वैसे कोई कदरदान या वैसे कोई साइंटिस्ट नहीं मिल रहा है। तो आप भी ऐसे कुछ इनोवेशन कर सकते हो और आपका भी नाम शायद किसी छोटे से माइनर प्लेनेट को जा सकता है। तो देखते हैं ये क्या टॉय है। तो सिंपल व्हॉट अ एक फन अचीवमेंट इट विल बी. हे छान राईट, सांगितलं सर, कारण हे माहिती नसतं असं पण होतं. अगदी राईट। तर हे काय खेळणं आहे आपण बघूया. तर हे रबरचा तुकडा आहे. एक कॉइन इकडे लावलेला आहे. कॉइन, काही तुमच्याकडे जे काही थोडं हार्ड मटेरियल असेल ते सीडीचा तुकडा किंवा असं काही स्केल वगैरे तुटलेले असेल तो तुकडा इकडे वापरू शकाल. फक्त मार्केटमधनं विकत घ्यायचे. मार्केट से हमें सिर्फ ये मैग्नेट परचेज करना है, अदरवाइज सब जुगाड़ है। तो मैग्नेट जो है ऐसे रिंग मैग्नेट बोलते हैं, ये ऑनलाइन भी मिलते हैं, और आपके पास कहीं आप पुणे में अगर हो आप तो पुणे में वाकड़ेवाड़ी में यहाँ शिवाजी नगर के पास हिंदुस्तान मैग्नेट बोल के बहुत बड़ा शॉप है, उनके पास में मैग्नेट मिलते हैं। तो फर्स्ट ये मैग्नेट आगे वाले अट्रैक्ट कर रहे हैं, पीछे वाले रिपेल कर रहे हैं। एक पेन के अंदर 2 मैग्नेट रखे हैं हमने, तो ये अट्रैक्ट करते हैं, पीछे वाले रिपेल करते हैं। अगर ऐसा रख देंगे तो पूरा पेन लेविटेड है, हवा में तैर रहा है। ओके, और मैं थोड़ा पास में लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरा फ्लोट कर रहा है ये पेन, और मैं जस्ट इसे थोड़ा सा, ये जो टेप लगा है ना वो पेन के ऊपर, क्यों? क्योंकि ये आपको रोटेट हुए होते हुए दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्पीड से घूमता है, रोटेट होता है, और ये हमें पता ही नहीं चलता कि ये रोटेट हो रहा है। तो टेप को देख के आपको पता चलेगा कि ये एकदम आसानी से रोटेट हो रहा है। हे जर्मनी, जपान, चायनामध्ये आता सध्या कार्यरत आहे मॅग्लेव ट्रेन, आणि ही ट्रेन एका तासाला 600 किलोमीटर जाते, इतका स्पीड आहे, आणि आता हे पेन फिरत आहे. दिसतंय का सर्वांना हे पेन फिरताना? हो, कमाल. अजून काही आपण असेच मॅग्नेटचे एक्सपेरिमेंट बघूया. ही मोटर आहे. मोटर घरामध्ये कमीत कमी 4 ते 5 किंवा त्याच्यापेक्षा पण जास्त वेळा म्हणजे जागी वापरली जाते. उदाहरणार्थ मोटर, मिक्सरमध्ये मोटर आहे, कूलरमध्ये मोटर आहे, वॉशिंग मशीनमध्ये मोटर आहे, फॅनमध्ये मोटर आहे.
तर बऱ्याच ठिकाणी आपण अशी मोटर वापरतो. तर मोटर जे आहे, तर तो काय कन्सेप्ट आहे किंवा कशी असते, तर ते कधी आपण ओपन केलेले नाही किंवा ओपन करताच येत नाही. तर त्यातला एक फार छान आहे आपल्याकडे डेमो आहे आणि हे ओपन मॉडेल आहे मोटरचं. तर बॅटरी आहे एकदम चालू कंडिशनमध्ये बॅटरी घेतलेली आहे. 2 सेफ्टी पिन आहेत. इकडे जे दिसतायत तुम्हाला ते 2 सेफ्टी पिन आहेत. मध्ये जे दिसतात ब्लॅकवाले ते 2 मॅग्नेट आहेत. आता जे आपण रिंग मॅग्नेट बघितले अशा प्रकारचे. तर ते 2 मॅग्नेट इथे वापरलेले आहेत आणि याला एक असं रबर बँडनी जोडलेलं आहे. काळा जे दिसते तुम्हाला ब्लॅक कलरची ते रबर बँड आहे. त्याला जस्ट जोडून ठेवलेलं आहे. आणि इथे कॉईल बनवलेली आहे कॉपर वायरची. कॉपर वायर 1 मीटर कॉपर वायर घ्यायचं, ह्याच्यावरती राउंड करायचे. बाहेर हळूच काढून त्याच्यावरती 2 साइडला 2 एंड सोडून दोन्हीकडे 2 नॉट लावायच्या. पण याचं इन्सुलेशन जे आहे ह्याच्यावर एक वॉर्निश असतं. जसं नेल पेंट असतं ना, तशा प्रकारचा बारीक लेयर असतो याच्यावरती या कॉपर वायरवरती. तसं याच्यावरचं एका साइडचं पूर्ण इन्सुलेशन काढायचं. वॉर्निश पूर्ण काढायचं. या नॉट पासून तर एंड पर्यंत इकडे. पूर्ण वॉर्निश सीझर या कटरच्या मदतीने रिमूव्ह करायचंय. आणि दुसऱ्या साइडचं जे आहे ते 3 भागावरचं इन्सुलेशन काढायचंय. 1, 2, 3. 3 साइडचं इन्सुलेशन काढायचंय आणि खाली जे आहे ते इन्सुलेशन वाला भाग आहे. या पिनेच्या जे लूप आहे, त्या लूपमध्ये आपल्याला या कॉइलची एंड ठेवायचे. जेव्हा इन्सुलेशन काढलेला भाग या पिनेला टच होतो, तेव्हा ऑन होतो आणि इन्सुलेशन असलेला भाग जेव्हा या पिनेला टच होतो, तेव्हा ऑफ होतो. तर ऑन ऑफचं बटन या कॉइलमध्ये असल्यामुळे त्याला ब्रश म्हणतात आणि ते ब्रश इथे काम करतं. सो अशा प्रकारची मोटर आपल्याकडे इथे फार छान पद्धतीने वर्किंग आहे. आता ही मोटर फिरत आहे. दिसते का तुम्हाला कॉइल फिरताना? Yes, yes. तर अशा प्रकारचं हे एक फारच छान डीसी मोटरचं टॉय आहे आणि एकदम ओपन मॉडेल आहे मोटरचं. Very कॉईल आपण simple. थांबवून दे. तर कॉईल थांबलेली आहे आणि याला थोडंसं अजून पल्स दिला की आपली कॉईल चालू होते. डीसी मोटर आहे. डीसी म्हणजे डायरेक्ट करंट आणि एसी म्हणजे अल्टरनेट करंट. तर हे डीसी करंट. तर त्याचा आपण आता अल्टरनेट करंट पण बघणार आहोत. आता इथे काय झालेलं आहे, इथे करंट दिलेला आहे आपण आणि मोशन मिळालेले आहे. म्हणजे त्याच्यात करंट ऑलरेडी होता. तो दिल्यानंतर हे मोटर फिरली, आपली कॉईल फिरत राहिली. म्हणजे मोशन आपल्याला करंट दिल्यानंतर मिळाला. आणि जनरेटरमध्ये काय होतं माहितीये का? आपल्याला मोशन द्यावं लागते आणि नंतर इलेक्ट्रिसिटीमध्ये करंट मिळतो. इकडे करंट दिल्यावर मोशन मिळालं मोटरमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला मोशन दिल्यानंतर करंट मिळतो. दोन्ही एकदम अपोजिट आहेत. तर हे एक जनरेटर आहे. सॉरी. जनरेटर कसं बनवलेलं आहे? त्याच्या आतमध्ये 2 मॅग्नेट आहेत. फारच स्ट्रॉंग मॅग्नेट आहेत दोन्ही. हे सीझर येत आहे चिटकताना दिसते आपल्याला. तर या मॅग्नेटला निओडीएम मॅग्नेट म्हणतात. पॉवरफुल मॅग्नेट आहेत. तर इथे 2 असे स्ट्रॉंग मॅग्नेट आहेत आतमध्ये, या पाईपच्या आतमध्ये. पीवीसी पाइप है आणि इकडे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये कॉपर वायर है. कॉपर वायर 1, 2, 3 ऐसे करके नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर हमने लगाए. अराउंड कितना लेना है आपको? तो 1000 के आसपास लेना है. मतलब 1000 टर्न्स लेना है यहाँ पर. नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा रहेगा ना, उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिलेगा. ये आपको अंदर जो मैग्नेट है उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा. और ये 2 खराब सीढ़ी है, नया युग का नया कचरा, दोनों को हमने इकट्ठा किया और बहुत अच्छी क्रैंक बना दी. और यहाँ पर एक छोटा क्रैंक पुली लगा दी और एक रबर बैंड से अटैच कर दिया. देखिए इसको जब रोटेट करते हैं तो इस कॉपर वायर के जो 2 एंड है, फर्स्ट एंड एंड लास्ट वाला, उसका एंड का इंसुलेशन निकालना है और यहाँ पर एक बल्ब को अटैच किया है. यहाँ पर एक 2 एलईडी बल्ब है, वो उसको अटैच किया है. जैसे हम इसे रोटेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. Ah, देखिए यहाँ पर लाइट मिल रहा है, तो ये एसी करंट है अल्टरनेट. जैसे ही हम इसे रोटेट करते हैं तो यहाँ पर लाइट मिलती है. और एसी मतलब अल्टरनेट, मतलब दोनों तरफ से भी लाइट मिलेगा. उल्टा घुमाए तो भी लाइट मिलता है और ऐसे से उल्टा घुमाए तो भी लाइट मिलता है, बोथ साइड. लेकिन डीसी में नहीं, डीसी में सिर्फ वन डायरेक्शन में ही करंट मिलता है.
तर अशा प्रकारचं हे जनरेटर आहे. तर इथे आपण अशा प्रकारे मॅग्नेट आणि कॉपर वायर वापरून अशा प्रकारची इलेक्ट्रिसिटी आपण इथे बनवलेली. तर कोयना डॅम वरती जर इलेक्ट्रिसिटी अशाच प्रकारे तयार होते. फार उंचावरनं पाणी एका टर्बाइन वरती पडतं. टर्बाइनला बकेट्स असतात आणि ते बकेट भरतं खाली जातं. दुसरं बकेट भरतं खाली जातं. असं कंटिन्यू तो फ्लो चालू राहतो आणि त्यामुळे तो टर्बाइन फिरल्यामुळे त्याला जोडलेले जे मॅग्नेट आहेत किंवा कॉईल आहे, मॅग्नेट किंवा कॉईल दोन्हीपैकी एक कुठलं तर रोटेट झालं पाहिजे. दोन्हीपैकी एक कुठलंही तुम्हाला जे सोपं आहे ते तुम्ही रोटेट करू शकता. आपल्याला इथे मॅग्नेट रोटेट करणं सोपं होतं. म्हणून आतमध्ये मॅग्नेट रोटेट होते. बघा नीट जर बघितलं तुम्हाला दिसेल, तर इथे मॅग्नेट रोटेट होतात. आतमध्ये कॉइलच्या या पीव्हीसी पाईपच्या आतमध्ये मॅग्नेट राइट. फिरतात. ठीक आहे. ते कॉईल असं नाही. सिलेंड्रिकल मॅग्नेट आहे का सर? हां, त्याचं असे तुम्ही 2 हे केलं? सिलिंड्रिकल 2 मॅग्नेट आहेत. राइट. ओके. आणि 2 एकमेकाला असे अट्रॅक्टमध्ये जोडलेले आहेत. छोटेसे 1 इंचाच्या आसपासचे 2 सिलिंडर असे मॅग्नेट. अच्छा. So simple and interesting. Kids, if you have any questions, put them in chat box किंवा raise your hand. आणि काही जण मध्ये विचारतात, कॅन यू प्लीज टेल अस द नेम ऑफ दिस टॉय. तर ह्यातली खूपशी टॉय जी मगाशी सर सांगत होते, अरविंद गुप्ता टॉयज वेबसाईटवर ते त्या स्लेट बद्दल सांगत होते. आय थिंक द क्वेश्चन केम ॲट दॅट पॉइंट इन टाइम. सो अरविंद गुप्ता टॉयज इज अ वेबसाईट. यू कॅन गो अँड चेक दॅट वेबसाईट. सर जी बरीचशी टॉयज दाखवतात किंवा त्यांनी जी एकत्र डिझाईन केली आहेत आणि टॉयज फ्रॉम द ट्रॅश वगैरे जे इनिशिएटिव्ह आहे ते सरांचे आणि अरविंद गुप्ता सरांचे हे बरोबरचे इनिशिएटिव्ह आहेत. सो यू कॅन चेक दोज टॉयज देअर ऑल्सो. हां, आणि तर आता सर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सोप्या पद्धतीने सांगतात की ही ऍक्च्युली कशी असेंबल केली आहेत टॉयज. सो हॅव अ लुक ॲट दॅट ऑल्सो. जर तुम्ही थोडे मोठे असाल आणि करू शकत असाल तर दॅट्स ऑल्सो अ गुड आयडिया. राइट. थँक यू मॅम. तो हे सगळे एक्सपेरिमेंट मॅडमनी सांगितलं तसं अरविंद गुप्ता वेबसाईटवरती अगदी फार चांगल्या पद्धतीने डॉक्युमेंट केलेले आहेत. 2-3 प्रकारे एक तर फोटोज आहेत, फिल्म आहेत, पुस्तकांमध्ये आहे. तर अशा 3-4 प्रकारे तुम्हाला तिकडे पाहायला मिळेल. त्याचे नाव प्रत्येक वेळेस आपण सांगतो सुरुवातीलाच. तर तसं ते टचिंग स्लेट होतं, नंतर मॅग्नेटिक लेव्हिटेशन होतं किंवा साउंडचे एक्सपेरिमेंट होते, बॉल इल्युजन होतं, मॅस्टिक मॉडेल अशा सगळ्यांची आपण नावं सांगतो सुरुवातीला. तरी तुम्हाला असं वाटलं कुठलं नाही समजलं, की तुम्ही एकदा अरविंद गुप्ता वेबसाईटवरती गेलात तर तुम्हाला भरपूर अशी मोठी लिस्ट मिळेल. 1000 च्या आसपास एक्सपेरिमेंट आहेत आणि त्यातले तुम्हाला जे आवडतील किंवा आता जी दाखवली, तेही नाव सर्च केलं YouTubeला तरी तुम्हाला मिळून जातील. ओके. हे एक फार सुंदर असं एक्सपेरिमेंट आहे. त्याला म्हणतात फॅन क्रेन. या टॉयचं नाव आहे फॅन क्रेन आणि हे जे फॅन क्रेन आहे, सो इथे अ, बघा मार्केटमध्ये जे टॉयज मिलतात ना, आपको जो मार्केट में टॉय मिलता है, वो बच्चे जो है ना कुछ दिन मतलब 1 वीक या 2 वीक उसके साथ खेलते हैं और उसके बाद उस टॉय को तोड़ते। तोड़ते मतलब उसको निकालते, पूरा अंजर-पंजर अलग करते हैं और फिर जब जोड़ने के लिए जाते हैं तब वो जुड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी ने बनाया तो कंपनी का एकदम ऐसे कुछ टॉयज होते हैं कि वो हम लोग उसे ठीक से असेंबल नहीं कर सकते। फिर मम्मी-पापा को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि अरे अभी लास्ट वीक तो लाया था तुम्हारे लिए टॉय, फिर तुमने क्यों तोड़ा उसको? लेकिन क्या होता है ना बच्चे क्यों तोड़ते हैं पता है? क्योंकि बच्चों को पता होता है कि अभी ये तो इतना अच्छा चल रहा है, ये कैसे वर्क हो रहा है? इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? ये इसके पेट में क्या छुपा हुआ है? वो देखने के लिए बच्चे तोड़ के उसको देखना चाहते हैं। लेकिन कंपनी का डिज़ाइन ही ऐसा है कि एक बार तोड़ा तो उसे जोड़ नहीं सकते। लेकिन आप अरविंद गुप्ता वेबसाइट के ऊपर जो आप देखेंगे तो सभी टॉयज़ ऐसे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 99% टॉयज़ ऐसे हैं कि आप उसे निकाल के फिर से जोड़ सकते हो। लाइक ये वाला देखिए टॉय, इसमें सब अंजर-पंजर आप अलग कर सकते हो। इसमें ये एक छोटा-सा ऐसा है टरबाइन बनाया। टरबाइन जो भी है ना, वो भी एक आइसक्रीम स्टिक से बनाए। देखिए, आइसक्रीम स्टिक इस टरबाइन के अंदर डालें, तो सब आइसक्रीम स्टिक अलग-अलग कर सकते हैं आप। ओके, तो ये टरबाइन हो गया। फिर एक ऐसे आइसक्रीम स्टिक है नीचे और एक बेस है, तो वो भी एकदम निकाल सकते हैं आप। फिर ये वाला इसमें से बकेट वाला थ्रेड और ये पूरा निकाल सकते हैं। देखिए, अंजर-पंजर अलग कर दिया और बहुत ही बढ़िया आप फिर से असेंबल भी कर सकते हो। तो ये हमारे टॉयज़ की बहुत ही अच्छी खासियत है कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से टरबाइन यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर आपको एक बेंड स्ट्रॉ लेना है और इसके ऊपर ब्लो करना है। अभी ये जो फैन क्रेन है, इस फैन क्रेन के ऊपर अभी बीच में एक ना कोरोना आया था। तो कोरोना के टाइम पे ना जिसकी लंग कैपेसिटी अच्छी है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन जिनकी लंग कैपेसिटी कम है या जिनके लंग में कुछ प्रॉब्लम है,
उनके लिए थोड़ा इसकी दिक्कत होती थी क्योंकि वो लंग के ऊपर अटैक करते थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय है। तो लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो एक यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बकेट अटैच किया है, तो ये इस बकेट में अभी कुछ भी नहीं है, और ये जो डिस्टेंस है स्टिक और बकेट का, तो ये एक 30 सेंटीमीटर है, मतलब 1 फीट का है। और आपको इसके ऊपर ब्लो करना है, इस टर्बाइन के ऊपर, और इस टर्बाइन के ऊपर ब्लो करके आपको इस बकेट को ऊपर लेके जाना है। तो आपको इसके ऊपर लेके जाने के लिए आपको बहुत जोर से इसके ऊपर ब्लो करना पड़ेगा, तब आप इस 1 फीट या 30 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस अच्छे से ऊपर लेके जा सकते हो। अगर आपके लंग की कैपेसिटी और बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, मेडिसिन का एक आपके घर में अगर कैप होगा उसमें लिखा होता है 5 ml 10 ml ऐसे, उससे अगर हमने इसके अंदर वाटर डाला 10 ml और उसको ब्लो किया तो बहुत अच्छा। फिर ऐसे करते करते अपना एक्सरसाइज रोज आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और इस बकेट को फिल करके आप इस बकेट को ऊपर लेके जा सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉय है। और देखिए इसके ऊपर अभी हम लोग ब्लो करते हैं तो बकेट कैसे ऊपर आता है। तो इस तरीके से बकेट ऊपर आया और धीरे धीरे अभी बकेट नीचे जा रहा है। फिर से हम इसके ऊपर ब्लो कर दें। सर्व पंकर मारली त्यांनी माय. मारली वर गेलं. हो, खाली पण चाललंय असं, आपण वर ह्याच्यावर फुंक मारल्यानंतर ते सगळं वर गुंडाळलं जाणार आहे आणि नंतर ते सगळं गोळा होऊन परत खाली जाणार आहे. तर बघा, मस्त. आता ही एम्प्टी बकेट आहे म्हणून मला इझिली वर घेऊन जाता येते. पण जर समजा आपल्या लंग्सची कॅपॅसिटी वाढवायची असेल आणि एक्सरसाइज करायचं असेल तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला 5 ml 10 ml असं पाणी टाकत जायचं. आणि घरामध्ये जर समजा 4 लोक आहेत तर प्रत्येकाची कॅपॅसिटी वेगळी असणार आहे. आईची वेगळी, बाबांची वेगळी, भावाची वेगळी आणि बहिणीची वेगळी, अशी 4 लोकांची त्या फॅमिलीची वेगळी असणार आहे. मग त्यावेळेस काय करू शकतो की बाबांसाठी 20 ml पाणी टाकायचं, आईसाठी 15 ml पाणी टाकायचं, मग भावंडासाठी 10 ml आणि बहिणीसाठी 5 ml असं करून जर बघितलं तर ते तेवढी बकेट आपण वर घेऊन जाऊ शकतो का? येस, जाऊ शकतो. मग थोडं थोडं पाण्याची लेवल वाढवत जायची आणि अशा पद्धतीने आपण मग माझं आज मी 10 ml पाणी वर घेऊन जाऊ शकतो, उद्या मी 15 ml घेऊन जाणार आहे. मग असे जर आपण रोज थोडं थोडं एक्सरसाइज केली तर अशी फार छान पद्धतीने आपली कॅपॅसिटी वाढवते आणि आपल्याला त्यानंतर कुठल्याही बाबाचे प्राणायाम किंवा योगा करायची गरज नाही. आपण आपल्या घरी अशा पद्धतीचं एक सुंदर एक्सपेरिमेंट बनवू शकतो. तो अशा प्रकारचे एक छान आपला प्राणायाम करणारं किंवा एक आपल्या कॅपॅसिटी लंग्सची वाढवण्यासाठीचं एक एक्सपेरिमेंट होतं. खूपच छान सर. हे सगळेच एक्सपेरिमेंट्स आणि ह्यातला ना मेन मुद्दा असा आहे की इतकं सायन्स तुम्ही सोप्या पद्धतीत सांगताय. म्हणजे म्युझिकल ती ते पहिल्या तुम्ही ते शिट्टीवाली वगैरे जी टॉईज सांगितली ना, गंमत अशी होते, अशी मिळतात पुष्कळ टॉईज. पण बरोबर. तुम्ही जो पहिलाच हे सोपा केला की एअर आणि व्हायब्रेशन याच्यामुळे साऊंड क्रिएट होतो अँड देन यू आर ओनली प्लेइंग विथ दोज एलिमेंट्स ऍक्च्युअली. असं करत करत आता आपण जे सगळे बेसिक कॉन्सेप्ट बघत इतके एक्सपेरिमेंट्स बघितले, फारच मजा आली. म्हणजे दिस वॉज अ व्हेरी फन रिफ्रेशर ऑन सायन्स फॉर मी ॲज वेल. आय एम शुअर जेवढे मुलं पटापट लिहितात वगैरे एव्हरीबडी मस्ट हॅव एन्जॉयड. वी हॅव पेरेंट्स अँड टीचर्स हू हॅव जॉईन्ड अस. सो परत एकदा सरांनी जी टॉईज सांगितली, पहिलं म्हणजे त्यांनी एक अन एक त्यातला आस्पेक्ट अगदी कुठे मिळतो, म्हणजे त्यांनी मॅग्नेट्स हिंदुस्तान मॅग्नेट्स पासनं सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. कारण या सगळ्याच्या मागे म्हणजे जी मी वर्कशॉप्स किंवा हे पाहिली आहेत, तर ही अटेंड केली आहेत. मुद्दा असा आहे की सायन्स हे कायम तुम्ही हँड्स ऑन सायन्स यासाठी आहे की करून शिकता. नुसतं बघून नाही तर गोष्टी करून बघा, तोडून मोडून बघा, जरा त्याच्यावर एक्सपेरिमेंट्स करा वेगळे वेगळे. अरविंद गुप्ता टॉईज ही जी वेबसाईट आहे, या वेबसाईटवर आता सरांनी सांगितलेले पुष्कळ टॉईज ते अगदी तोड-मरोड करून तुम्हाला वापरता आणि परत खेळता येतील अशा पद्धतीचे टॉईज अवेलेबल आहेत. सरांनी सांगितलेल्या वस्तू आणि सोप्या-सोप्या घरातल्या गोष्टी, कारण सरांचा जो टॉक पण आहे तो टॉईज फ्रॉम ट्रॅशवर आहे. त्याच्यामुळे अगदी आपण ज्या गोष्टी वापरत नाही आहोत, टाकून देतोय, तिथपासनं पण हे सायन्स एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करता येतील. हे नक्की वापरा, बघा आणि वी आर गोइंग टू बी सेंडिंग काही पेरेंट्स आणि टीचर्सचे पर्सनल पण मेसेजेस येतायत.
तर येस, वी आर गोइंग टू बी सेंडिंग द रेकॉर्डिंग ऑफ धिस इन आवर ड्राईव्ह आणि तो ड्राईव्ह तुमच्याबरोबर शेअर केला जाईल. फील फ्री टू शेअर, फील फ्री टू शो इट टू एव्हरीवन. सो पण दिस वॉज ग्रेट. दिस वॉज ॲब्सोल्युटली ऑसम. कॅन वी बाय दिस? आता आय हॅव ऑलरेडी आन्सर्ड आद्या. येस, यू कॅन बाय दिस. अरविंद गुप्ता टॉईजवर बरेचसे हे अवेलेबल आहेत यातले टॉईज. पण विक्रीसाठी नाहीयेत गुप्ता सरांच्या वेबसाईटवरती. सरांचा एकच उद्देश होता की स्वतः मुलांनी शिक्षकांनी बनवावेत आणि त्यातनं जास्तीत जास्त शिकावं. जर एखादी रेडीमेड टॉय घेतलं तर आपल्याला बरोबर. त्याच्याबद्दल जास्त माहिती नाही होत आणि एकदा का ते काम नाही करत तर मग आपण नंतर त्याला सोडून देतो किंवा एक साईडला टाकून देतो. पण ते तुम्ही जर मार्केटमधनं करेक्ट. आणून वस्तू जर बनवलेल्या असेल आणि जर चालत नसेल तर तुम्हालाच माहिती आहे कारण तुम्ही बनवलेलं आहे ते. आणि ते तुम्ही टाकून देणार नाही कारण तुम्हाला माहिती आहे त्याच्या मागे किती एफर्ट्स घेतलेले आहेत तुम्ही ते बनवण्यासाठी. करेक्ट. तो त्यामागचा उद्देश सरांचा असा होता की तुम्ही स्वतः बनवायला पाहिजेत आणि जर तुम्हाला असं वाटलं कोणाला हवे तर आम्ही आहोतच बसलेले देण्यासाठी. नक्की घेऊ किती शकता. छान. आणि सर ऍक्च्युली तुम्ही जे म्हटलात ना, तो एक एक्सपेरिमेंट म्हणून पण ना त्याला IKEA इफेक्ट जे म्हटलं जातं. सो IKEA या दुकानात आय एम शुअर बरीचशी मुलं जी गेली असतील, तुम्ही गेले असाल मुलांनो आणि पालकांनो. तर यू मस्ट हॅव सीन की तिथे ना यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कॅन बाय म्हणजे ॲज अ किट आणि त्या तुम्ही घरी असेंबल करू शकता. अगदी बुकशेल्फ वगैरे पण तुम्ही घरी असेंबल करू शकता. याच्यावरनं ना एक गंमत असं हे आलं होतं, IKEA इफेक्ट म्हणजे एक रेडी तयार असलेला बुकशेल्फ जर तुम्ही घेतला आणि एक असा बुकशेल्फ घेतला त्याचे तुम्ही बिट्स एंड पार्ट्स एकत्र करून तो बनवला, तर तो बनवलेला थोडासा इकडे-तिकडे जरी झाला ना, की थोडं तिरकं लागलं तरी तुम्हाला ते जास्त आवडतं. कारण देअर इस एन एफर्ट इन्व्हॉल्व्ड इंटू इट. सो याला ॲक्चुअली नाव आहे IKEA इफेक्ट म्हणून. आता जसं सर म्हटले, की अगदी सोप्या गोष्टींपासून बनवून बघा आणि ते बनवताना जी गंमत येते किंवा चुका होतात, इव्हन फ्रॉम दोज मिस्टेक्स यू कॅन लर्न. आणि इफ सायन्स इज मेड सो सिम्पल इन वर्ड्स लाइक these, it would be awesome. So we will be sharing all the material about this. We will also attach the website that we are talking about. Amin Gupta Toys ही वेबसाईट पण आपण त्याला अटॅच करू. डेफिनेटली हॅव अ लुक ॲट इट. आणि थँक यू माने सर. दिस वॉज a wonderful Sunday morning for all of us. आणि thank you parents and teachers who have joined us today. आपण नक्की याचं रेकॉर्डिंग शेअर करू. हे नक्की करून बघा आणि whichever experiments that you are trying त्यातनं जर काही बनवलं आम्हाला त्याचे फोटोज नक्की पाठवा. काय आवडलं माने सर आम्ही तुम्हालाही त्याचे फोटोज पाठवू की मुलांना काय आवडलं त्यांनी कसं करून पाहिलं. थँक यू फॉर मेकिंग इट सिम्पल सगळ्यांसाठी. आणि वी वुड लव्ह टू स्टे कनेक्टेड विथ यू. Thank you so आणि much. आपल्या मुलांसाठी आपल्याला काय ऑफलाईनही गोष्टी करता येतील याच्यासाठी. सो वन्स अगेन थँक यू फ्रॉम टीम asymmetrical.ai and Thank you, parents, sir. teachers, students. This was I'm sure this was fantastic for all of you and I'm speaking for all of you. So thank you so much. Have a beautiful Sunday. See you all. Take care.